A very good morning to you all. Myself, JVN Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University. In today's lecture, we will be discussing about rheumatoid arthritis, its definition, etiopathogenesis, and clinical features. We will also try to compare some of the features of osteoarthritis with rheumatoid arthritis in order to gain a better understanding about both the diseases. In the last lecture, I have completed osteoarthritis. It was a 3-lecture series, and in today's lecture, I will be starting with rheumatoid arthritis. So, कभी भी पेशेंट हमारे पास में आएगा, अगर rheumatoid arthritis का पेशेंट आता है तो क्या सिम्टम्स हमारे पास में लेके आएगा, कैसे हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमें उसे डायग्नोज करना है, किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है और पेशेंट को क्या क्या चीज़ें बतानी है ताकि हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाए। सिर्फ ट्रीटमेंट ही ज़रूरी नहीं होता किसी भी डिजीज़ का, उस डिजीज़ का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। The management part consists of not only giving medicine to the patient, but also giving other advice to the patient related to the diseases so that he can live a better life with that particular disease condition. So let's start with rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disease of unknown etiology. तो जब हमने osteoarthritis पढ़ा था, हमने देखा था वो non-inflammatory disease, लेकिन rheumatoid arthritis is basically a chronic inflammatory disease of unknown etiology. यहाँ पे हमें etiology पता नहीं है, what is the cause नहीं पता। Osteoarthritis के अंदर हमने कई सारे predisposing causes पढ़े थे, जिसमें trauma was one of the most important cause. यहाँ पे etiology पता नहीं है, लेकिन यहाँ होता क्या है? It is marked by the symmetrical peripheral polyarthritis. मतलब symmetrical joint involved होते हैं, peripheries के joint involved होते हैं और polyarthritis multiple joints involved होते हैं। Osteoarthritis was a disease of larger joints, whereas the rheumatoid arthritis start with the smaller joints of the body. Peripheries पे मतलब आपके fingers, toes, ये joints सबसे पहले इसमें involved होते हैं, जबकि osteoarthritis में weight bearing bigger joints involved हो रहे थे, जिसमें hip joint था, knee joint था, इस तरह के बड़े joints थे. It is most common form of chronic inflammatory arthritis. So as we all know, हमने classification पहले पढ़ा था, तो उससे हमें समझ आया था कि that rheumatoid arthritis is basically a chronic inflammatory arthritis, often resulting in the joint damage and physical disability. Osteoarthritis में भी physical disability आ रही थी, rheumatoid arthritis में भी physical disability आ रही है, लेकिन जो degree of joint damage है वो rheumatoid arthritis में ज़्यादा है, बहुत तेजी से आता है और कम एज के इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज के इंडिविजुअल्स को अफेक्ट कर रहा था। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाज द डिजीज ऑफ जॉइंट्स प्रीडोमिनेंटली, वहां पे जॉइंट्स ही अफेक्ट हो रहे थे, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पे एंटीबॉडीज बन रही हैं और खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, इसलिए ये सिर्फ जॉइंट्स को ही इफेक्ट नहीं करता बल्कि मल्टीपल सिस्टम्स ऑफ बॉडी को अफेक्ट करता है। सो द क्रॉनिक rheumatoid arthritis is basically a chronic multi-system disease of unknown etiology. It is characterized by persistent inflammatory synovitis. इसके अंदर persistent inflammatory synovitis होता है, inflammation of the synovial membrane, usually involving peripheral joints symmetrically. तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया peripheral joints involved होते हैं और उनका symmetrical involvement होता है. It is characterized by cartilaginous destruction, bony erosion and joint deformity. तो यहाँ पर क्या होता है? कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होता है, बोनी इरोजन होता है, जॉइंट डिफॉर्मिटी होता है। कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन वहां पर भी होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, लेकिन वहां पे फोकल डिस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे मास डिस्ट्रक्शन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिस्ट्रक्शन के साथ में बोन का न्यू बोन का फॉर्मेशन भी हो रहा था, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा होता है, इसके साथ में बोन इरोजन होता है, यहाँ पे नई बोन फॉर्मेशन का आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। एंड देयर इज ग्रेटर डिग्री ऑफ डिफॉर्मिटी इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन कंपैरिजन टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत तेजी से कम एज में शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से इसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं। सो यहाँ क्या हो रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, दिस इज द नॉर्मल जॉइंट जिसमें आपको कैप्सूल होता है, जॉइंट कैप्सूल होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, बोन होती है। यहाँ पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्योंकि इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो यहाँ पर आपकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो स्वोलन होती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो इस वजह से जब पेशेंट हमारे पास में आता है तो उसके जॉइंट्स हमें सूजे हुए दिखते हैं, उसके इन्फ्लेम्ड दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में लार्जर जॉइंट, जिसमें हमने हिप जॉइंट की बात की थी, नी जॉइंट की बात की थी, यहाँ पे स्मॉलर जॉइंट जैसे कि रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, इन सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। शोल्डर जॉइंट,
सब छोटे छोटे जॉइंट्स जो होते हैं, पेरिफेरीज पे जो जॉइंट्स होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट पहले होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, जो कि वेट बेयरिंग में इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस फॉर डायग्नोसिस, हमें क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस को समझ सकें। सो कोर्स ऑफ डिजीज, पहले हमें इसका समझना पड़ेगा कि कोर्स ऑफ डिजीज क्या होता है। The clinical course is prolonged, the intermittent exacerbation and remission. यहाँ पर क्या होता है, जिसका क्लिनिकल कोर्स होता है बहुत लंबा होता है, और उसमें कभी कभी पेशेंट की डिजीज बढ़ती है और कभी कभी कम हो जाती है ना। पेशेंट कभी बोलता है बहुत ज्यादा सीवियर हो गई, कई बार बोलता है वापस से कम हो गई, और फिर वापस से थोड़े टाइम बाद वापस सीवियरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसको समझना क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले रिमेटॉइड आर्थराइटिस को लाइटली लिया जाता था और उसे मैनेज किया जाता था मेडिसिन से, लेकिन जब इसके कॉम्प्लिकेशंस देखे गए, इसके सिस्टमिक सिम्टम्स देखे गए और सिस्टम्स पे इसका इफेक्ट देखा गया, तब हमें समझ आया कि ये डिजीज ऐसी नहीं है जिसको कि आप इग्नोर कर सकें या इसे लाइटली ले सकें। तो इसलिए क्योंकि इसके वजह से बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी हो रही थी, बहुत ज्यादा मॉर्बिलिटी हो रही थी, इसलिए रिमेटॉइड आर्थराइटिस को टाइमली डायग्नोज करना और उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप उसमें लगाएंगे, जितना ज़्यादा टाइम निकालेंगे, उतनी ही ज़्यादा डिसेबिलिटी पेशेंट की होती जाएगी, उतने ही ज़्यादा ऑर्गेनिक ऑर्गन चेंजेस आपकी बॉडी में होते जाएंगे। ठीक है, इसका जो इफेक्ट होता है आपके लंग्स पे भी पड़ता है, आपके हार्ट पे भी पड़ता है, आपकी आईज पे भी पड़ता है, आपकी स्किन पे भी पड़ता है। सो वो सब हम देखेंगे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस के अंदर कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चेंजेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से आते हैं। The patient with rheumatoid arthritis have increased mortality when compared to the age matched controls. अगर हम दो इंडिविजुअल लेते हैं एक ही एज ग्रुप के, एक कंट्रोल है जिसको कोई डिजीज नहीं है, दूसरा ऐसा इंडिविजुअल है जिसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस जिस इंडिविजुअल को है उसकी डेथ जो दूसरा कंट्रोल इंडिविजुअल है जिसको कोई डिजीज नहीं है उससे पहले हो जाएगी, प्राइमरीली ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो इसमें होता है ना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है, इसमें पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस the patient are registered disabled within 3 years. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसके वजह से डिसेबिलिटी बहुत तेजी से होती है रिमेटॉइड आर्थराइटिस में। इन रिमेटॉइड आर्थराइटिस द पेशेंट आर रजिस्टर्ड डिसेबल्ड विद इन 3 years। मतलब जैसे ही आपने, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, पेशेंट को 3 साल हो गए डिजीज को आगे बढ़ते बढ़ते, तो इतनी तेजी से डिजीज आगे बढ़ती है कि उसके वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है, बहुत प्रीडोमिनेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने देखा था कि इसमें सालों लग जाते हैं, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, डिसेबिलिटी बहुत आगे जाती होती है। और वैसे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ओल्ड एज में जाती होती है, जबकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी एज में हो सकती है, इवन यंग इंडिविजुअल्स, यंग एडल्ट्स में भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपने ध्यान नहीं दिया, इसका प्रोग्रेस बहुत तेज है, जिसके वजह से मार्क्ड डिसेबिलिटी हो जाती है, पेशेंट की जो लाइफ है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अराउंड 80% ऑफ मॉडरेटली टू सीवियर डिसेबल्ड, 80% जो होंगे वो मॉडरेट टू सीवियर डिसेबल्ड हो जाएंगे विद इन 20 years, एंड 25% विल रिक्वायर अ लार्ज जॉइंट रिप्लेसमेंट। 25% के अंदर आपको लार्ज जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। द फंक्शनल कैपेसिटी डिक्रीजेस मोस्ट रैपिडली एट द बिगिनिंग ऑफ द डिजीज। तो जैसे ही डिजीज शुरू होती है उसके साथ में ही फंक्शनल कैपेसिटी इंडिविजुअल की बहुत तेजी से डिक्रीज होने लग जाती है। What is the incidence? क्या incidence होता है rheumatoid arthritis का? It occurs in 0.5 to 1% of the population. Total population जो है उसका 0.5 to 1% इंडिविजुअल्स में ही होते हैं, लेकिन इसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है, डिजीज की सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है लोगों को। The women affected 3 times more than men. So this is a disease predominantly of the females, although males are also affected. The incidence of rheumatoid arthritis increases between 25 to 55 years of age. तो ये जो इसका इंसिडेंस होता है, अब आप देख रहे हैं 25 साल से ही इसका इंसिडेंस चालू हो जाता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में 40-45 के बाद में जाके डेवलप हो रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे यंग एडल्ट्स को ही ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी से आ रही है। 25 साल, 26 साल, 30 साल के इंडिविजुअल आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि हमारे फिंगर्स में पेन हो रहा है, हमारे रिस्ट जॉइंट में पेन हो रहा है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, जिसकी वजह से हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। सो जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है इसके पेन्स बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, दोनों साइड में एक साथ डेवलप होते हैं और बहुत सीवियरिटी के साथ डेवलप होते हैं। ठीक है, आफ्टर व्हिच इट प्लेट्यूज अंटिल द एज ऑफ 75 इयर्स एंड देन डिक्रीजेस। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स तो हैं इसके लिए, इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ rheumatoid arthritis. So both the genetic factors and environmental factors play an important role in initiating of the disease. इसका एसोसिएशन देखा गया है HLA-DR4 जीन के साथ में। एसोसिएशन हैज बीन सीन विद HLA-DR4 जीन। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग इज फाउंड एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इट कैन बी
ट्रिगर्ड बाय द इन्फेक्शियस एजेंट। अगर इन्फेक्शियस एजेंट है वो अगर ससेप्टेबल इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है तो उसकी वजह से भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। व्हाट इज द इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी? हम लोग जानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज है ना, ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें कि एंटीबॉडी, आपकी बॉडी अपने अगेंस्ट में ही एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है और आपके जॉइंट को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सिस्टेंट सेलुलर एक्टिवेशन। इसमें क्या होता है? सेलुलर एक्टिवेशन। इसकी पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो आपको अच्छे से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्यादा चेंजेस नहीं थे, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत सारे चेंजेस आपको पैथोफिजियोलॉजी में देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो मैं चाहूंगा कि आप इसे दोबारा सुनें, ठीक है? So it is characterized by persistent cellular activation, autoimmunity, and the presence of immune complex at the site of articular and extra-articular lesion. तो दो चीजें हमें हमारे दिमाग में रखनी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ जॉइंट की डिजीज नहीं है, जॉइंट के अलावा दूसरे सिस्टम्स को भी इफेक्ट करती है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें एंटीबॉडीज बनती है जो अपने ही सेल्स को, अपने ही ऑर्गन को, अपने ही टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेलुलर एक्टिवेशन होगा, ऑटो इम्यूनिटी होगी और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आपके बनेंगे, ठीक है? इसके वजह से क्या होगा? देयर विल बी इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। दिस लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन एंड जॉइंट डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा, ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन होगा और साथ में जॉइंट डिस्ट्रक्शन होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जैसे न्यूबोन फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलेगा। देयर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। The earliest sign change is swelling. तो यहाँ पे आपको swelling देखने को मिलेगी, इन्फ्लेमेशन की वजह से swelling होगी and congestion of the synovial membrane. तो जो आपकी synovial membrane है that will be swollen and there will be congestion and underlying connective tissue. synovial membrane की और underlying connective tissue की उसमें congestion होगा और swelling होगी. This is characterized by inflammation, infiltration of the synovial membrane. उसके साथ में क्या होगा? आपकी synovial membrane के अंदर infiltration होगा। इन्फिल्ट्रेशन किसका होगा? लिम्फोसाइट्स का, प्लाज्मा सेल्स का और मैक्रोफेजेस का। इन्फिल्ट्रेशन होगा किसके अंदर? साइनोवियल मेम्ब्रेन में। साइनोवियल मेम्ब्रेन में किसका इन्फिल्ट्रेशन होगा? लिम्फोसाइट्स का, प्लाज्मा सेल्स का और मैक्रोफेजेस का। तीन चीजों का इन्फिल्ट्रेशन होगा। आप यहाँ देखिए चेंजेस हो रहे हैं। ये नॉर्मल बोन है, हेल्दी जॉइंट है। यहाँ पर आपको बोन इरोजन, सबसे पहले बाहर की तरफ देखिए, आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है इन्फ्लेम्ड है ना, बिल्कुल इन्फ्लेमेशन, बिल्कुल रेड रेड आपको दिखता है। इसके अलावा कार्टिलेज आपकी वियर एंड टियर हो रही है, रिड्यूस जॉइंट स्पेसेस हो रहे हैं और साथ में बोनी इरोजन आपको देखने को मिल रहा है। ये इनिशियल फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है? एक्टिवेटेड टी सेल्स, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो यहाँ पे आपके एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, टी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, साइटोकाइनेंस होंगे। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में हम अभी पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, ठीक है? एक्टिवेटेड टी सेल्स स्टिमुलेट बी सेल्स टू प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जो आपके टी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाए। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में क्या क्या चीजें आएंगी? उसमें रिमेटॉइड फैक्टर भी होगा, रिमेटॉइड फैक्टर जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है? सो इंक्लूडिंग रिमेटॉइड फैक्टर एंड मैक्रोफेजेस टू प्रोड्यूस प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन। ये क्या करेंगे? प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन को बनाएंगे, है ना? दे एक्ट ऑन द एंडोथेलियम, ये एंडोथेलियम पे एक्ट करते हैं। साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट, बोन सेल्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स पर एक्ट करते हैं। जिससे क्या होता है? टू प्रमोट स्वेलिंग एंड कंजेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? स्वेलिंग हो रही है, कंजेशन है साइनोवियल मेम्ब्रेन का, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि वो किस वजह से हो रहा है। टी सेल्स ने बी सेल्स को बोला कि आप इम्यूनोग्लोबुलिन बनाओ जिसमें कि रिमेटॉइड फैक्टर बने। मैक्रोफेजेस ने क्या बनाया? प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेंस को बनाया। एंड ये किस पे एक्ट कर रहे हैं? एंडोथेलियम, साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट एंड बोन सेल्स एंड कॉन्ड्रोसाइट, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है साइनोवियल मेम्ब्रेन का, जिसमें स्वेलिंग है, कंजेशन है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यू। जो हमने अभी पिछली वाली स्लाइड में पिक्चर देखी थी उसमें जो जो चेंजेस हुए थे उसको समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। The B cells release immunoglobulin. ये बताया हमने ऊपर, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं इंक्लूडिंग रूमेटॉइड फैक्टर व्हिच कैन फॉर्म द इम्यून कॉम्प्लेक्स लीडिंग टू वेस्कुलाइटिस। इसके वजह से वेस्कुलाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स होता है। लिम्फोइड फॉलिकल्स फॉर्म विद इन द साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर लिम्फोइड फॉलिकल्स भी बनने लग जाते हैं। सारा का सारा ऑटो इम्यून प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें होती हैं। ये तो नॉर्मल जॉइंट है आपको लेफ्ट साइड में, जिसमें जॉइंट कैप्सूल है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, कार्टिलेज है हमारे पास में। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या क्या हो रहा है? बोन का इरोजन हो रहा है। पैनस फॉर्मेशन, पैनस फॉर्मेशन इज अ वेरी टिपिकल थिंग जो कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलती है ना। टी सेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स आपके पास में है, न्यूट्रोफिल्स है, बी सेल्स है जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना रहे हैं, रूमेटॉइड फैक्टर बना रहे हैं।
हाइपोप्लास्टिक साइनोवियल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है। तो कितने सारे चेंजेस हमें रिमेटॉइड आर्थराइटिस में एक जॉइंट के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जॉइंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और उसकी वजह से लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम अभी तक। इन्फ्लेमेटरी ग्रैनुलेशन टिश्यू, जो मैंने आपको यहाँ बताया था ना, पेनस फॉर्मेशन, यहाँ पेनस फॉर्मेशन, दिस इज द टिपिकल फीचर ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये क्या होता है, किस वजह से बनता है? The inflammatory granulation tissue penis spread over the under the articular cartilage। तो यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू से बनता है। इन्फ्लेमेटरी ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होता है उसको पेनस बोलते हैं। वो स्प्रेड होता है वहाँ पर एंड अंडर द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड इज प्रोग्रेसिवली इरोडेड एंड डिस्ट्रॉयड। उसके साथ में पेनस बनने के साथ में जो कार्टिलेज होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, इरोड होती है और डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। The fibrous or bony ankylosis can occur। तो उसके बाद में fibrous tissue formation होता है और ankylosis मतलब fusion of bone। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे किस तरह से क्या उसका पिक्चर में होता है, ठीक है। The muscle adjacent to the inflamed joint atrophy and infiltrated with lymphocytes। अब इसमें भी जो मसल्स होती है, हमने देखा था ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी मसल्स की एट्रोफी हो रही है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी मसल्स की जो एडजेसेंट टिश्यू में मसल्स हैं उनकी एट्रोफी हो रही है। The muscles adjacent to the inflamed tissue atrophy and inflamed with lymphocytes। इसके infiltrated with an lymphocyte, इसमें infiltration होता है lymphocytes का। Rheumatoid nodules, जिसको हम subcutaneous nodules भी बोलते हैं, ये वैसे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में आता है। हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे जब हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे ना, लेकिन हम ये समझेंगे कि ये क्यों बन रहे हैं, किस वजह से बन रहे हैं, इसलिए पैथोफिजियोलॉजी में डाला है इसको। Rheumatoid nodule consist of central area of fibrinoid material। इसमें central area होता है fibrinoid material का, that is surrounded by the palisade of proliferating mononuclear cells। इसमें क्या होता है, fibrinoid material होता है that is surrounded by the palisade of proliferating mononuclear cells। उसके चारों तरफ में proliferating मतलब बढ़ते हुए mononuclear cells होते हैं, तो वो गांठें बना देती है, जिसको subcutaneous nodules बोलते हैं या फिर rheumatoid nodules भी बोलते हैं, है ना। ये आपके एक्स्ट्रा, इस तरह से देखिए आप छोटे-छोटे nodules बन गए यहाँ पे subcutaneous स्किन के नीचे, है ना, इसलिए इसको subcutaneous nodules बोला गया है या फिर रिमेटॉइड नोड्यूल्स बोला गया है। ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस की टिपिकल फीचर है ना। बहुत सारे डिफॉर्मिटीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी रिमेटॉइड आर्थराइटिस में। वी विल फाइंड अ ग्रेटर नंबर ऑफ डिफॉर्मिटीज इन दिस पर्टिकुलर डिजीज। तो हम उन सबको पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसको लेकर आगे चलते जाते हैं। नाउ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लीजन्स, ठीक है, जैसे मैं अभी बता रहा था, सिर्फ जॉइंट्स की बात नहीं की, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लीजन्स की भी बात की। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स जो कि रिमेटॉइड नोड्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा ये लीजन्स कहाँ-कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? They can occur in the pleura, they can occur in the lungs, they can occur in the pericardium and sclera। ना आंखों में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, प्लूरा में हो सकता है। lymph nodes are often hyperplastic। इस डिजीज में, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, जो आपकी lymph nodes होती हैं वो यूजुअली हाइपरप्लास्टिक हो जाती है, showing many lymphoid follicles। ये आपको कई तरह के lymphoid follicles दिखाते हैं। immunofluorescence confirm rheumatoid factor। immunofluorescence टेस्ट क्या होता है, जिसमें आप एंटीबॉडीज को चेक करते हैं, ठीक है। It confirms rheumatoid factor antibody synthesis by the plasma cells in the synovium and lymph nodes। तो synovium के अंदर और lymph node के अंदर immunofluorescence टेस्ट से आपको rheumatoid factor antibodies देखने को मिल जाती है, जो कि कंफर्म करता है कि ये rheumatoid arthritis का पेशेंट है। So एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को करेंगे, लेकिन आज हम देख लेते हैं कहाँ-कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। आइज के अंदर हो रहा है, यहाँ पे रीनल किडनी में इफेक्ट पड़ रहा है, इसका पेरिकार्डियम में पड़ रहा है, लंग्स है, प्लूरा में हो रहा है। इसके अलावा वेस्कुलाइटिस हमारे पास हो रहा है, फिंगर्स में स्प्लिंटर हेमरेजेस हो रहे हैं, लिम्फेडिनोपैथी है, स्प्लीनोमेगैली जो फैटी सिंड्रोम में हम पढ़ेंगे इस चीज को। तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स हैं, मतलब क्योंकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक सिस्टमिक डिजीज है जो सिर्फ जॉइंट्स को ही अफेक्ट नहीं करता, अदर सिस्टम ऑफ बॉडी को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए सिस्टमिक डिजीज इसको बोला गया है। इस वजह से इसमें आर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, जॉइंट डिजीज के फीचर्स होते हैं और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स होते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या चीजें हो रही है। हेल्दी जॉइंट है, इसके बाद यहाँ पे साइनोवाइटिस हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेम हुई, थिकन हुई, ठीक है। पेनस फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर। पेनस फॉर्मेशन के बाद में फाइब्रस एंकाइलोसिस। मैंने आपको बताया था ना, पहले फाइब्रस बैंड बनेगा जिसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा और उसके बाद में बोनी एंकाइलोसिस। फिर फाइब्रस में ऑसिफिकेशन होकर बोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हाँ बोनी एंकाइलोसिस। तो बोन जॉइंट का पूरी तरह से फ्यूजन हो जाएगा और मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या छोटी छोटी चीजें हमने डिफरेंस देखा था। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन है, बोनी इरोजन है, जॉइंट डिफॉर्मिटी है और रिमेटॉइड फैक्टर एंटीबॉडी साइटोकाइनिन बनता है, ठीक है। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने फोकल लॉस देखा था आर्टिकुलर कार्टिलेज का, प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू बोन वाज देयर, जबकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस में किसी प्रकार कोई न्यू बोन प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा।
और प्रोलिफरेशन होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में देयर वाज रीमॉडलिंग ऑफ द जॉइंट कंट्रोल, जबकि यहाँ पर हमारे पास में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में किसी भी तरह का रीमॉडलिंग ऑफ जॉइंट कंट्रोल नहीं है। अब आप देखिए ये नॉर्मल जॉइंट है, यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हो रहे हैं, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस चेंजेस हो रहे हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन इज वेल मार्क्ड। सबसे ज्यादा देखते ही आपको अगर पता लगाना चाहोगे तो इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन वाज नॉट देयर। ठीक है, बोन्स रब टुगेदर, तो ये जो फ्यूजन हो रहा है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन की वजह से बोन्स आपस में टकरा रही थी, रगड़ खा रही थी, वहाँ पे न्यू बोन फॉर्मेशन भी था, है ना, रीमॉडलिंग ऑफ द जॉइंट कंट्रोल था, जबकि यहाँ पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको ऐसा न्यू बोन फॉर्मेशन नहीं मिलता, जबकि बोन इरोजन आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने काफी सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी बता दी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आज के लेक्चर में हम आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस को डिस्कस करेंगे, क्या क्या जॉइंट्स में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। The diagnosis can be established by careful history and physical examination. तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट जब भी आपके पास में आएगा, आप उसकी हिस्ट्री पूछ के और उससे उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट दिस इज द केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इट इज अ सिस्टेमिक डिजीज, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, सिस्टेमिक डिजीज है तो सिर्फ जॉइंट्स को ही अफेक्ट नहीं करती, और चीजों को भी अफेक्ट करती है। इसलिए इसकी क्लिनिकल फीचर्स को दो में डिवाइड किया है, articular manifestations and extra-articular manifestation. In this lecture, we will be completing articular manifestation, and extra-articular manifestation will be covered in the next lecture. So, articular manifestation में क्या क्या आता है? The clinical hallmark of the inflammatory joint disease is persistent synovitis. Inflammation of the synovial membrane is known as synovitis. तो यहाँ पे हमने देखा है कि there is persistent inflammation of the synovitis. The history of symptom persisting more than 6 weeks. जैसे हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा था क्रॉनिक डिजीज है, मतलब 6 वीक से ज्यादा की हिस्ट्री है, उसी तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी जो पेशेंट हमारे पास में आता है, हम उसका डायग्नोसिस तभी करेंगे जो पिछले 6 हफ्ते से ज्यादा से उसे तकलीफ है। अगर 6 हफ्ते से पहले आपने उसका डायग्नोसिस कर दिया तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि इट कैन बी वायरल आर्थराइटिस। ठीक है, तो उस चीज को एक्सक्लूड करने के लिए आपको 6 हफ्ते बाद ही, अगर पेशेंट को 6 हफ्ते से ज्यादा से कंप्लेन है, क्रॉनिक कंप्लेन है, तभी आप कहेंगे कि उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। So the history of symptom presenting more than 6 weeks is cut off to exclude viral arthritis. ये देखिए आप एक्सरे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये नॉर्मल है या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखिए कितना ज्यादा बोनी इरोजन हो रहा है, कितनी ज्यादा बोनी डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मिटीज मिल रही है। इसके इमेजेस भी हम देखेंगे जिससे कि आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकें। आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस में क्या क्या चीजें आती है? द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स रिजल्ट्स फ्रॉम इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, टेंडन एंड बर्सा। यहाँ पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन इज वेरी वेल मार्क्ड। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन किस चीज का होता है? जॉइंट्स का होता है, टेंडन्स का होता है, बर्सा का होता है। अर्ली मॉर्निंग जॉइंट स्टिफनेस लास्टिंग फॉर मोर देन 1 आवर दैट ईजेस विद फिजिकल एक्टिविटी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो स्टिफनेस थी दैट वाज लेस देन हाफ एन आवर, यहाँ पर जो स्टिफनेस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो स्टिफनेस है दैट इज मोर देन 1 आवर। मॉर्निंग में दोनों में स्टिफनेस है, आधे घंटे से कम में ऑस्टियोआर्थराइटिस और 1 घंटे से ज्यादा अगर है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दैट ईजेस विद द फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ पे क्या हो रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो उससे आराम मिलता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में रेस्ट करने से आराम मिलता है, फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ जाता है। तो यहाँ टिपिकल आपको रस्टॉक्स का कैल्केरिया फ्लोर का सिम्टम मिल रहा है। तो स्टिफनेस इज वर्स इन द मॉर्निंग एंड इज बेटर बाय मूवमेंट। टिपिकल सिम्टम आपको रस्टॉक्स या कैल्केरिया फ्लोर का यहाँ आराम से देखने को मिल रहा है, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर लार्जर जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे, जैसे हिप जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा था, आपका नी जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा था, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये स्टार्ट होता है स्मॉलर जॉइंट से। इनिशियली स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड, फीट एंड रिस्ट आर इन्वॉल्व, है ना, बिल्कुल अपोजिट हो गई प्रेजेंटेशन। ठीक है, लार्जर जॉइंट आर इन्वॉल्व लेटर ऑन। ठीक है, तो लार्जर जॉइंट्स यहाँ पे लेटर ऑन इन्वॉल्व होंगे एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स में आल्सो अकर। ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ जॉइंट की डिजीज थी, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट के अलावा सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व करता है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन आईज को, लंग्स को, हार्ट को, स्किन को, कई जगह पे इसके मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे। देयर इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जब भी पेशेंट हमारे पास में आएगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों साइड के जॉइंट्स एक साथ अफेक्ट हुए, स्मॉल जॉइंट्स, पेरिफेरल जॉइंट्स इन्वॉल्व हुए, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व हुए, ठीक है, रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व हुए, नी जॉइंट सॉरी एल्बो जॉइंट इन्वॉल्व हुए। ठीक है, सारे छोटे छोटे जॉइंट, इंटरफेरेंजियल, इंटरटार्सल जॉइंट इन्वॉल्व हुए, लेकिन उसका सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है, दोनों साइड के एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इनिशियल पैटर्न इज मोनो आर्टिकुलर, सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, ऑलिगो आर्टिकुलर, लेस देन 4 जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, या पॉली आर्टिकुलर जिसमें कि 5 से ज्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बायलैटरली सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होगा।
कैसे आप डायग्नोस करोगे? तो पेशेंट हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस का आएगा, कैसे? मॉर्निंग स्टिफनेस लेके आएगा, 1 घंटे से ज़्यादा से मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, ठीक है? 3 से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, आरएफ फैक्टर, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होगा, जो किसकी वजह से बना था? बी सेल्स ने बनाया था, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और बी सेल्स ने बनाया था। बी सेल्स ने इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसमें कि रूमेटॉइड फैक्टर भी मौजूद था। रेडियोलॉजिकल चेंजेस जो हमने अभी एक्सरे में देखे थे, आर्थराइटिस ऑफ हैंड जॉइंट, पेरिफेरीज पे ज़्यादा होते हैं, इंटरफेरेंजियल जॉइंट से शुरू होता है ये। ड्यूरेशन ग्रेटर देन 6 वीक्स, यानी इसका लिया है कि 6 हफ्ते से ज़्यादा होगा तभी हम इसे डायग्नोस करेंगे। एंड देयर इज सिमेट्रिकल आर्थराइटिस, दोनों साइड के जॉइंट एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, और साथ में रूमेटॉइड नोड्यूल्स, जो कि क्यूटेनियस नोड्यूल जिसका पिक्चर हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, वो रूमेटॉइड नोड्यूल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। समटाइम्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैज वेरी एक्यूट ऑनसेट, कभी-कभी इसमें बहुत तेजी से सिम्टम्स आते हैं, जिसमें कि मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, पॉलीआर्थराइटिस होता है, और साथ में पिटिंग एडिमा भी पेशेंट को देखने को मिलता है। तो सिम्टम्स यंग एज में अगर आ रहे हैं तो बहुत तेजी से आ जाते हैं, जिसमें आपको एक्यूट ऑनसेट, सडन ऑनसेट, पहले कुछ नहीं था, एकदम से बहुत सीवियर पेन हुआ, मॉर्निंग स्टिफनेस रहने लगी, पॉलीआर्थराइटिस हुआ और साथ में पिटिंग एडिमा होने लग गया। Once the disease process of RA is established, एक बार जैसे ही disease process establish होता है, उसके बाद में wrist joint, metacarpophalangeal joint जिसको MCP बोलते हैं, and proximal interphalangeal joint, PIP joints are the most frequently involved. तो हाथों के joints, ठीक है, metacarpophalangeal, interphalangeal joint, proximal interphalangeal joint, metatarsalophalangeal feet में involve होते हैं, तो ये सारे joints ऐसे joints हैं peripheries पे जो सबसे पहले involve होते हैं। The joints are tender and swollen. यहाँ पे जो joints होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंडर यानी पेनफुल हो जाते हैं और उनमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। और इसके अलावा कुछ चीज़ों में पॉजिटिव, जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। क्या क्या चीज़ पॉजिटिव मिलेगी? सीरम रूमेटॉइड फैक्टर मिलेगा आपको, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव, दिस इज द इम्पोर्टेंट साइन फॉर डायग्नोसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें हमेशा रूमेटॉइड फैक्टर कराया जाता है। एंड एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलती है, साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन, सीसीपी आप बोलते हैं, एंटी सीसीपी प्रोटीन एंटीबॉडीज आपका पॉजिटिव मिलेगा। एंड दे हैव द हायर स्कोर्स फॉर फिजिकल डिसेबिलिटी, यहाँ पे जो डिसेबिलिटी होती है उसका स्कोर पेशेंट का हायर रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो हम एक बार वापस इसको रिवाइज करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ पॉजिटिव मिलेगी। यहाँ पे कौन से जॉइंट्स मिलेंगे? पेरिफेरल जॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको कौन कौन से? रिस्ट जॉइंट मिलेगा, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट मिलेगा, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट मिलेगा, मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट फीट का भी मिलेगा पॉजिटिव। इसके अलावा एंकल जॉइंट भी वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो जॉइंट्स आर स्वोल्डन टेंडर, बायलैटरली सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होगा इसका। दो चीजें पॉजिटिव हमेशा याद रखिए, आरएफ फैक्टर और एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलेगी, और साथ में फिजिकल डिसेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। द अदर जॉइंट्स आर एक्टिवली इन्फ्लेम्ड इफ दे आर टेंडन और प्रेशर। अगर प्रेशर रहता है या फिर प्रेशर अप्लाई किया जाता है या कोई हैवी एक्टिविटी की जाती है, उसके वजह से आगे जाके अदर जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। इसको कैसे देखा जाता है? इसको स्ट्रेस पेन, उस जॉइंट पे, पर्टिकुलर जॉइंट पे पेन देकर, स्ट्रेस देकर चेक किया जाता है, जिससे कि आप पैसिव मूवमेंट में स्ट्रेस देकर देख रहे हैं, जिससे कि आपका फ्यूजन या सेल्फ टिश्यू स्वेलिंग आपको देखने को मिले, ठीक है। तो सिर्फ छोटे जॉइंट ही इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें बड़े जॉइंट भी इन्वॉल्व होते हैं, अदर जॉइंट भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसको आप स्ट्रेस टेस्टिंग से चेक कर सकते हो, एफ्यूजन और सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग देख सकते हो, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है कि इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको फ्लैट फुट देखने को मिलता है, मतलब जो आपके फुट आर्चेस हैं पेशेंट के, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्केनियो वेल्गस, है ना। रिफ्लेक्शन डैमेज टू द एंकल एंड सबटेलर जॉइंट इज ऑफन एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल आर्क। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जो पेशेंट हमारे पास में, अभी हम इमेज देखेंगे, फोटोग्राफ उसका देखेंगे, जिसमें कि क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल आपका फुट आर्क पेशेंट का खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखिए फ्लैट फुट, जिसमें कि आर्चेस, नॉर्मल आर्क पैर में इस तरह से बनता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, पेशेंट का पैर एकदम जमीन पर टच हो जाता है। दिस इज द आर्टिकुलर फीचर इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलती है, ऑल्दो दिस अकर्स इन अदर डिजीजेस एज वेल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स, द डेफिनेशन, द इडियोपैथोजेनेसिस एंड द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन कंपैरिजन विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। हमने कुछ समझने की कोशिश करी है, मैं मान के चलता हूँ आपको पूरा नहीं तो फिर भी कुछ तो समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द डिफॉर्मिटीज, है ना। अभी तक हमने जो चीजें देखी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डिफॉर्मिटीज बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट होती हैं आपके जॉइंट्स के अंदर, तो हम लोग डिफॉर्मिटी से शुरू करेंगे। आपके हैंड्स में कौन कौन सी डिफॉर्मिटी होती है, फीट में कौन कौन सी डिफॉर्मिटी होती है, इसमें स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है, कई तरह की हम डिफॉर्मिटीज की बात करेंगे, तो हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस को डिस्कस करेंगे जॉइंट के अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और कौन कौन सी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती है, क्या इन्वेस्टिगेशन और क्या मैनेजमेंट रहेगा, वो उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।
In the next lecture, we will be starting the deformities and extra-articular manifestations of rheumatoid arthritis. मैं मान के चलता हूँ कि इस लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी। दोनों डिजीजेस ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस में काफ़ी हद तक चीज़ें आपको समझ आई हैं। और मैं नहीं समझता कि इन लेक्चर्स को सुनने के बाद में आप लोग इन चीज़ों को डायग्नोस करने में किसी तरह की गलती करेंगे, दोनों ही चीज़ों को, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस, और उसके साथ में रिमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोस करने में भी किसी तरह की गलती हो पाएगी, मैं ये नहीं मानना चाहता। ठीक है, तो आप लोगों को सब चीज़ धीरे धीरे समझ आई है, और वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, जिसमें हम लोग डिफॉर्मिटीज और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस डिस्कस करेंगे rheumatoid arthritis. So this is for now. This was Dr. Ravi Jain. Thank you for all. Thank you for listening, and we will meet in the next lecture. Thank you.